तितलियाँ और फूल, यहाँ फूल खिलते हैं, वहाँ तितलियों के दिल मिलते हैं। हम देख रहे हैं पंचफुली के फूल, पंचफुली, लेकिन इस फूल के साथ दीवानगी एक तितली की, तितली बटरफ्लाई। तितलियाँ जो हैं लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स होती हैं और इनके विंग्ड स्केल्स होते हैं और मकरंद नेक्टर लेने के लिए जो फूल पे मंडराती हैं। और देखें आप किस तरह से बटरफ्लाई जो है वो लेंथाना कैमारा के फूलों पर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के हवाले से अभी 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक जो COP8 की मीटिंग हुई 28 की, उसमें किस तरह से क्लाइमेट चेंज को काबू करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए फॉसल फ्यूल्स को फेज आउट करने की बात हुई। उसके साथ ही जो एक्वाटिक वाटर सिस्टम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करने की बात हुई, इकोसिस्टम्स को इम्प्रूव करने की बात हुई, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात हुई। लेकिन जब तक हम ग्रीन कवर जो है फॉरेस्ट को बचा के नहीं रखेंगे तो कार्बन सिंक उतना ज़्यादा नहीं होगा कि जो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम कर सके। तो हरियाली तभी होगी जब इनके जो पॉलिनेटर्स हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए। तो ये बटरफ्लाइज जो हैं, बटरफ्लाइज दे आर वेरी सेंसिटिव टू माइनर वेरिएशन इन मॉइस्चर regime or temperature. Everything is very meticulously balanced in this nature. And we see another species, chocolate pansy. Chocolate pansy, that is Junonia epiphyta. Junonia epiphyta is there on pink flowers of lantana. This is chocolate pansy. So on lantana we could see not only chocolate pansy, Junonia epiphyta, but also common jejebel. Just few minutes before, a pair of common jejebel, they were sipping nectar from the flowers of lantana. They must have gone somewhere now, but again I think they will come to suck nectar. Even the diversity of flowers within lantana is also varied. We see here is a pink flowering lantana. This is orange yellow. Here it is white, and there it is yellow. So we find 4 color variations within lantana family, Barbinaceae, teak family, now clubbed under Lamiaceae. So this is yellow flowering lantana, and these flowers attract butterflies. So बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बटरफ्लाई गार्डन बनाएं उसमें हम लंथाना को लगाएं, बट अदरवाइज दिस इज एक्सोटिक स्पीशीज मैक्सिकन सेज, और इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज गार्डन ऑर्नामेंटल, तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। दिस पर्टिकुलर फ्लावर अदरवाइज
is must for any botanical garden. अगर हम और फूलों की बात करें सो यहाँ पे टर्क्स कैप फ्लावर भी है, जिसको कुल्लीज कैप फ्लावर भी कहा जाता है, और कप एंड सासर प्लांट है। एक कप बनता है और उसके बीच में आप देखिए फ्लोरल स्ट्रक्चर है, जो किसी तरह ऐसा लगता है कि ये कुंडा डंडा है। कुंडी में एक डंडा रखा हुआ है, तो इसीलिए कप एंड सासर प्लांट इसका कॉमन नेम है। अदरवाइज इसका नाम है कपनी, डोगरी भाषा में इसको हम कपनी भी कहते हैं। हॉल्म स्क्वाइल्डिया सैंग्विनिया इज इट्स बोटानिकल नेम। हॉल्म स्क्वाइल्डिया, अगेन ये भी लंटाना फैमिली से ही है प्लांट। वेरी अट्रैक्टिव, कलरफुल, एंड इवन हनी बीज they also visit its blossoms. Another plant which attracts honeybees is Cyphea. So these are the cigar-like flowers of Cyphea melvillea. So this particular honey plant also attracts pollinators, insects. Again, this is from Mexico, not Indian plant. But during autumn season, early winter, when there are very few flowers in any herbal garden or floriculture parks, then this Cyphea adds color. And when I was talking, you can see the pollinator also on the flowers. So here I have the bumblebee on the flowers of Cyphea melvillea. So how these flowers are intimately associated with the insect world, and without cross pollination many plants cannot set seeds. So to continue the life cycle, plant flowers need the help of pollinators. So pollinators may be honeybees, may be bumblebees, may be butterflies, even some flowers, trees require the service of birds, ornithophilae. For example, we have the Indian coral tree, that is Erythrina suberosa. There also we need the birds, so ornithophilae, pollination by birds. And there is another where the bat pollination, that's called chirotyrophily. So there is another set of flowers like Kigelia africana, where pollination takes place with the help of bats. So see how the bumblebee in the Cyphea association. So these flowers basically are not formed from corolla. Basically this is a long calyx tube. So this is a kind of hypanthium, you can say. The petals are highly reduced, popularly known as cigar flower. Where there are flowers, there you will find insects. And this is better example where we are seeing bumblebee on the flowers of Cyphea melvillea. If we go again visit some more flower, then we will find flowers of
morning glory, that is Ipomoea purpurea, Prabhat Shobha, also called as Khadpawai or Jojunu or Ishkpeche, and these flowers of a climber, they are perched on the medicinal shrub Berberis, दारू हरिद्रा जिसको हम कहते हैं। तो दारू हरिद्रा झाड़ी के ऊपर प्रभात शोभा के खूबसूरत फूल, और ये प्रभात शोभा आइपोमिया, इसके भी बीजों को आयुर्वेद में मेडिसिन के तौर पे, औषधि के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दारू हरिद्रा तो आयुर्वेद की बहुचर्चित जो है झाड़ी है। दारू हरिद्रा क्योंकि इसकी जो लकड़ी है उसका कलर जो है हरिद्रा की तरह हल्दी के समान रहता है। दारू का मतलब हो गया लकड़ी या श्रब्बी काष्ठीय प्लांट, तो इसीलिए इसको संस्कृत में नाम दिया गया दारू हरिद्रा। और डोगरी में कैम्बलू भी कहते हैं, कुछ लोग सिम्बलू कहते हैं। कश्मीर में तो काओ दच कहा जाता है क्योंकि इसकी जो फ्रूट्स हैं वो ब्लैक ग्रेप्स की तरह दिखाई देते हैं। और पीले रंग वाली तितली भी जो है कॉमन ग्रॉस येलो हमारे सामने इस वक्त मंडरा रही, आगे पीछे अभी अभी थी और अभी चली गई उस तरफ। कॉमन ग्रास येलो, यूरिमा है कैपी, सो ग्रास में बैठी हुई है, ये वह है यूरिमा है कैपी, कॉमन ग्रास येलो। कुछ फूल जो हैं जिनका नाम ही बटरफ्लाई के नाम से है, वो है बटरफ्लाई बुश। इसमें भी कई कलर्स के बटरफ्लाई फ्लावर्स होते हैं। तो ये हमारा जो है वाइट फ्लावरिंग है, जिसको वुडलिजा एशियाटिका कहा जाता है। चूंकि अब फूल नहीं है, फ्लावरिंग का सीज़न नहीं, आटम का सीज़न है, नहीं तो इसके ऊपर भी बहुत से फ्लावर्स अट्रैक्ट होते हैं, बटरफ्लाइज। और एक और प्लांट जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में मदद करता है, रादर बटरफ्लाई लीज एग्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लांट, जिसको हम नवग्रह वाटिका में भी लगाते हैं, सूर्य का मदार। ये प्लांट जो है अलग अलग तितलियों को जो है अंडे देने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। खासकर कॉमन टाइगर, डेनाइस, क्राइसिपस या फिर स्ट्राइप टाइगर, डेनाइस जन्यूशिया। ये सीज़न नहीं है, नहीं तो हमें इस पे कैटरपिलर भी दिखाई देते। कैटरपिलर जो इनके पत्तों को चाव से काट डालते हैं, टॉक्सिक प्लांट। और ये एक और खूबसूरत बात है कि तितलियां जो हैं आम तौर पे टॉक्सिक प्लांट्स को ही चुनती हैं, ताकि उनके जो कैटरपिलर्स हैं वो उनकी बॉडी में भी पॉइजन रहे थोड़ा सा, और ऐसा जहर, ताकि उनको उनकी प्रिडेशन ना हो। तो ये भी एक अडेप्टेशन है। तो ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की बुशेस हैं। अगर हम देखें कि ऑटम में बहुत कम ही फूल होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और इसी तरह से तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें एक प्लांट हमें सामने दिख रहा है जिसका नाम है मैक्सिकन सनफ्लावर, टिथोनिया। ये है टिथोनिया। कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग इस वक्त इस पे है। टिथोनिया डाइवर्सिफोलिया, ब्यूटी ऑफ ऑटम। एंड आल्सो गुलदाउदी, और गुलदाउदी का सीज़न है अभी। यूं ही विंटर होगा, जितनी जितनी ठंडा मौसम होगा, तो ये क्राइसेंथेमम मोरिफोलियम के कई हाइब्रिड्स हैं, तो उसी की एक बुश हमें दिख रही है। और सो मैनी
dipteran insects are. They are also hunting for some kind of food, forage, maybe pollen. And here we have the even syrphid insects. For example, here we have some insect which is from Syrphidae, and this particular capitulum or head, and so many insects are there. So how plants and animals, they are intimately associated. Rather, there is a talk of co-evolution. Flowers and insects, they co-evolved, and that adaptation is unique to angiosperms and Arthur insecta. So some particular kind of flowers are pollinated only by particular insects. All kind of insects cannot pollinate all kind of flowers. So this is one color of chrysanthemum, and this is another color of chrysanthemum, red. Here also some insects I am able to see, some flying insects you will see, and capitula. Here you are able to see. गुलदौदी इसको कहा जाता है हिंदी में, गुलदौदी। और गुलदौदी के कई फूल हैं और कई इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी क्राइसेंथेमम है और ये भी क्राइसेंथेमम है। ये लाल कलर की है और ये येलो है। और देखिए ये भी हाइब्रिड है और कितनी छोटी सी वनस्पति है और इसमें कितने ज़्यादा फूल हैं, गोल्डन ग्लो है। और इसमें भी अगर ध्यान से देखें तो सो मेनी इंसेक्ट्स दे आर फीडिंग, चाहे ये सिरफीडी जो है ये हो, चाहे और भी छोटे छोटे डिप्टेरन इंसेक्ट्स आर देयर। अगर हम टिथोनिया डाइवर्सिफोलिया को देखें तो इसके ऊपर भी कुछ तितलियां जो हैं हमें दिख रही हैं। जैसे वो तितली दिख रही है चॉकलेट पेंजी, और एक कैपिचुला है। ये एक फ्लावर नहीं है। बोटानिकली स्पीकिंग फ्लावर्स हैव, दे आर रे फ्लोरेट्स, और यहाँ पे बीच में जो है ना ये है डिस्क फ्लोरेट्स। ये डिस्क फ्लोरेट्स और ये रे फ्लोरेट्स। फ्लोरेट्स कंप्लीट फ्लावर नहीं है, रिड्यूस्ड फ्लावर्स हैं, इसलिए इनको फ्लोरेट्स कहा जाता है। और दो किस्म के हैं, जो सूरज की रश्मियों की तरह बाहर की तरफ निकले हुए हैं उनको कहते हैं रे फ्लोरेट्स, और बीच वालों को कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। और देखिए इसमें भी शहद की मक्खी जो है घुसी हुई है, और परागन तो ये करेगी ही। यहाँ से पोलन उठा के जब दूसरे कैपिचुला पे बैठेगी तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देगी अपनी बॉडी पे लगा हुआ पराग। तो पॉलिनेशन तो करेगी ही, लेकिन अपना आहार भी ढूंढेगी। तो इस तरह से नेचर ने एक इंटर रिलेशनशिप डेवलप किया है कि आहार ढूंढते ढूंढते फूलों का परागन कर देना। और फूल सिर्फ बसंत में ही नहीं होते हैं, फूल पतझड़ में भी होते हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं टिथोनिया डाइवर्सिफोलिया के फ्लावर्स, और इसके ऊपर होती हुई पॉलिनेशन। ये देखिए जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी कहीं ना कहीं आपको इंसेक्ट्स दिखेंगे। ये है, और तितलियाँ भी दिखेंगी। तितली भी मंडरा रही है। थोड़ा सा जो 11 बजे 12 बजे ज़्यादा तितलियाँ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। अभी थोड़ा सा इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको नहीं दिख रही उसकी। लेकिन ये देखिए एक और डिफरेंट काइंड ऑफ पूंड जिसको हम कहते हैं, एक किस्म का ये बीटल लग रहा है या जो भी है इंसेक्ट है। बोटानिकल बाइनोमियल तो पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन देखिए ये भी अपना आहार जो है टिथोनिया डाइवर्सिफोलिया के फूलों में खोज रहा है। ये देखिए, तो यहाँ हरियाली होगी, यहाँ एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर कम होगा, जहाँ पे शोर शराबा कम होगा, प्रदूषण कम होगा, वहीं पे जो है बायोडाइवर्सिटी जो है थ्राइव करती है। तो ये एक ख़ास बात है।
ट्री टॉक एक पॉपुलर कार्यक्रम 19 दिसंबर 2010 को शुरू किया गया था जम्मू यूनिवर्सिटी धन्वंतरी लाइब्रेरी के सामने से, और उस कार्यक्रम को 13 साल जो हैं होने वाले हैं। 13 years ऑफ ट्री टॉक बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस। 19 दिसंबर 2023 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में हम एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे अलग अलग ट्री टॉक एंथुजियास्ट आकर के अपने हर्बल चीज़ों का डिस्प्ले करेंगे। खासकर बनी के हिल से आ रहे हैं केवल परिहार जी, जो 13 किस्म की दातुनी टूथ ब्रशेस ला रहे हैं, जैसे इंडिगोफेरा हेटरेंथा की दातुन होगी, सेलेक्स टेट्रास्पर्मा की दातुन होगी, बर्बेरस लाइसियम की दातुन होगी, बाइबर्नम ग्रैंडिफ्लोरम की दातुन होगी, और भी ना जाने किस किस की दातुन को लेके आएंगे और उसको प्रदर्शित करेंगे ट्री टॉक के एनिवर्सरी ट्री टॉक सेशन में। ऐसे ही रियासी कॉलेज से आ रहे हैं रमेश छत्री, जो विलक्षण जड़ी बूटियों का प्रदर्शन करेंगे। साथ में आएंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पलौड़ा के प्रोफेसर विजय चंदन, जो वैजंती माला का प्रदर्शन करेंगे। क्वैक्स लक्राइमा जोबी के जो ग्रेन्स होंगे उनसे बनी हुई माला, वैजंती माला, जो औषधीय गुण भी रखती है और धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ, इसलिए डोगरी में उसको सुच्चा मोती भी कहते हैं। वो प्रदर्शित करेंगे ओरोजाइलम इंडिकम की बड़ी बड़ी तलवार जैसी पॉट्स, कैप्सूल्स, जो एक च्यवनप्राश का घटक है और 10 मूल पेड़ है आयुर्वेद का, ओरोजाइलम इंडिकम, उसको लेके आएंगे। और जखिया के सीड्स खास करके उन्होंने एकत्रित किए इस कार्यक्रम के लिए। जखिया एक उत्तराखंड का बेहतरीन मसाला है, बीज होते हैं सरसों के बीज की तरह, और उसका तड़का लगाया जाता है। उत्तराखंड में बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं वो बीज जखिया के। क्लियोम विस्कोसा, जिसको पीली न्यूली डोगरी में कहा जाता है। तो देखें, जब तक हम बात कर रहे हैं ट्री टॉक के कार्यक्रम की, तब तक हम कहीं ना कहीं फूलों में होता हुआ परागन भी दर्शा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं ट्री टॉक के एनिवर्सरी की, तो उसमें रामनगर के दूर दराज चौकी जन रोड से आ रहे हैं श्यामलाल अग्निहोत्री अपनी कविता लेके। डोगरी में उनकी कविता बड़ी खास होगी। देखें, अब एक और फूल जो है गुट्टे का फूल है, और इसके ऊपर आपको तितली दिख रही है, लेकिन दूसरे जो फ्रूट पे आपको हनी बी दिख रही है। तो कहीं पे हनी बी है, शहद की मक्खी है, कहीं पे तितली है। तो ये रिश्ता जो है, और देखिए जब तक हम बात करें तो दूसरी तरफ गुट्टे के फूलों के ऊपर जो टाइगर है, जो है प्लेन टाइगर जो है डेनाइस क्राइसिपस, वो भी आके मंडरा रही है। और कैबेज बटरफ्लाई की बात करें तो वो भी हमें दिख रही है, हालांकि वो क्राइनम एशियाटिकम पे चली गई, लेकिन पहले वो भी इधर आके अपना जो है प्यार दर्शा रही थी। और ये हमारे पास सामने जो है ये थनवर्जिया के पेनिकल्स हैं, और इसमें हम देख रहे हैं वाइट आई। ये फूल हैं शेरे दी लड़ियां जैसे हम दिख रहे हैं। और ये जो है थनवर्जिया की जो फूल हैं, इसमें वाइट आई भी अपना जो है, और साथ ही तितली भी।
देखिए तितली भी है। तितली जो है एक तरफ बैठ नहीं रही है, तो इसलिए उसको फोकस करना मुश्किल है। पर ये बड़े जो फूल हैं ये भी हम देख रहे हैं, और ख़ास में इसमें कई किस्म के इंसेक्ट्स भी हैं, खासकर वास्प्स। तो वास्प्स भी इस फूल पे हैं, थनवर्जिया, माइसोरेंस एंड कॉक्सिनिया, 2 गार्डन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो है हमारे बागों में मिलते हैं। और ये एक बहुत ही औषधीय अश्वगंधा, एक हमने सुना ही है, वो होता है विथेनिया सोमनिफेरा, लेकिन ये है सर्वगंधा, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो सांप की तरह सरपेंटाइन रहती है। और यहाँ पे देखें ये वास्प है, बेसिकली ये वास्प है। और वास्प का भी हम देख रहे हैं कि फूल के साथ मोहब्बत है, और साथ ही साथ ये तितली है, तितली जो उड़ रही है। और ये है चॉकलेट पेंजी, चॉकलेट पेंजी जुनोनिया इफिथा। तो कहीं पे वास्प है तो कहीं पे बटरफ्लाई है, लेकिन जहाँ पौधे हैं वहीं पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपस में थ्राइव करती है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। इसको बेशक हम कह देते हैं ऑल स्पाइस, और कुछ लोग इसको लौंग से भी कंफ्यूज करते हैं। ये लौंग तो नहीं है, ये प्लांट जो है ऑल स्पाइस है, पाइमेंटा डायोइका। और कुंद के फूल खिल चुके हैं, बहुत जल्दी ही खिल जाते हैं, पतझड़ में ही शुरू हो जाता है। खासकर सर्दियों में खिलने वाला एक जास्मीन है, ये जास्मीन मल्टीफ्लोरम, जास्मीनम प्यूबेसेंस। और काफ़ी ये खूबसूरत अंदाज में, और एक समय था इसी के सेरे भी बनाए जाते थे, सेरे लड़ियाँ। और जो हम बात कर रहे थे, ये प्लांट है जो विजय चंदन जी प्लौड़ा कॉलेज से लाएंगे, इसको हम कह रहे हैं ओरोजाइलम इंडिकम। ये उसी की गिरी हुई एक पार्ट ऑफ कैप्सूल है, और उसी के ये पत्ते हैं गिरे हुए, और ये जो हैं बेंगड़े उसके सीड रहते हैं। तो ये है ओरोजाइलम, जिसका तिब्बत में काफ़ी जो बौद्धि लोग हैं इनके सीड्स को लेके एक झूमर सा बनाते हैं। और इवन दो धूला जो होता है उसका सेरा जो होता है उसको में भी इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। शिवनाक संस्कृत का नाम है, अरलू, भूतिया, भूत वृक्ष, टाटरा, मुंजन के इसके नाम हैं। और इसकी फली सबसे बड़ी होती है, और इसकी जो डंठल होते हैं इसके, वो बिल्कुल ऐसे नज़र आते हैं जैसे टूटी हुई हड्डी हो। तो इसीलिए इसको ब्रोकन बोन्स ट्री भी ऐसा लगता है, पेड़ के नीचे ये जो टेढ़ी मेढ़ी तिरछी हुई पड़ी हुई जो इसके पडंकल्स हैं, स्टॉक्स हैं, लीफ स्टॉक्स, दे लुक वेरी सिमिलर टू फीमर एंड ह्यूमरस बोन। ये देखिए, तो ये जो हैं इसलिए इसको ब्रोकन बोन्स ट्री का नाम भी मिला हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक नीचे जो है हड्डियों की जैसे, और ये वाला पेड़ है और ये इसके पत्ते हैं। और अगर हम बात करें कुछ पेड़ों की जिन्होंने हमारे संस्कृति को भी सींचा है, तो उसमें ये पेड़ आता है जिसको कहते हैं सीता अशोक, सारका इंडिका। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, और माना जाता है कि सीता मैया श्रीलंका में इसी पेड़ की वाटिका में इंतजार करती रही थी रामा का, और वहीं पे हनुमान जी पहली बार मिले थे। सीता अशोक, सारका अशोका, ये पत्ते आप देख रहे हैं, इसका सैलड हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रापियोलो मेजस है, तो इसके पत्तों को खाए, हालांकि ये एग्जॉटिक गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट है, लेकिन इसको भी, और ये चांगेरी है ओक्सैलिस, जिसको भी हम चटनी के रूप में खा सकते हैं। ये झूठा तेज पत्ता है, पत्ते जो हैं वो बिल्कुल तेज पत्ते के समान लगते हैं, लेकिन दे आर मोर डार्क ग्रीन,
जो असल तेज पत्ता है वो लाइट ग्रीन पत्ते रहते हैं उसके। हालांकि बेस से ट्राई नर्व्ड है, ऐसे ही होते हैं वो भी तेज पत्ता, लेकिन तेज पत्ता थोड़ा एलांगेटेड रहता है, इतना एलिप्टिक नहीं रहता है। और ये झूठा, क्योंकि इसको सबसे पहचान इसकी ऐसे है कि पत्ते को लेके अगर खुशबू ले तो इसमें कोई खुशबू नहीं है। अगर वास्तविक ट्रू तेज पत्ता है तो उसमें खुशबू आएगी, सुगंध आएगी, तो इसलिए इसको झूठा तेज पत्ता भी कहा जाता है। हालांकि डोगरी में तो चोपड़ू कहा जाता है इसको। साइंटिफिकली इसका नाम जो है काकुलस लारीफोलियस है। लारीफोलियस में लारल की तरफ पत्ता दिखता है, लेकिन है नहीं लॉरेसी का मेंबर। तो मिनी स्पर्मेसी का ही एक ट्री है। तो एक ट्री लाइक जो ग्रोथ है इसकी, और ये है चोपड़ू। और ये तो हरड़ है। हरड़ जो है उसका भी अपना वो एक मुकाम है। और ये सुप्त गुड़हल है। सुप्त गुड़हल, गुड़हल है लेकिन सोई हुई। और ये हमारा कपूर वृक्ष है। और ये एलियोकार्पस अंगस्टिफोलियस है। और यहाँ पे हम देखें तो माधवलता, माधवलता हिप्टेज बेंगालेंसिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये भी। और ये प्लांट जो है गंधराज है, गार्डिनिया जास्मिनाइडस। और ये कड़ी पत्ता है जो बटरफ्लाइज के लिए, ये भी एक लार्बल होस्ट प्लांट है। कड़ी पत्ता, द्रौंकल हम डोगरी में कहते हैं। मुराया कैनी गई, ये तो तुलसी है। और ये कपूर तुलसी है जो ऑसिमम ग्रेटिसिमम, ये भी जो है। ये एक और प्लांट देख रहे हैं जो पत्थर चाट जिसको बोलते हैं, कैलेंचो, कैलेंचो पिनेटम। ये भी एक बटरफ्लाई का लार्वल होस्ट प्लांट है। ब्लैक एंड वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई, पायरट, रेड पायरट जिसको हम कहते हैं। तो रेड पायरट जो है वो भी इसके ऊपर अंडे देती है और अपना जीवन चक्र जो है कंप्लीट करती है। और ऐसे ये फर्स्ट एड प्लांट है। और अगर जल जाए स्किन, कहीं गर्म गर्म पानी गिर जाए कुछ हो तो तब भी इसका पेस्ट लगाया जाता है। किडनी स्टोन्स के लिए भी इसको रामबाण औषधि माना जाता है। हालांकि इससे बेस्ट मेडिसिन प्लांट जो किडनी स्टोन्स के लिए है वो पहाड़ों का प्लांट है, वर्जीनिया सिलियाटा। लेकिन ये प्लांट जो है क्रेजुलेसी फैमिली का है। और लीव्स यहाँ पे अपोजिट रहते हैं, अपोजिट डेकोसेट। और इसके जो लीव मार्जिन्स हैं उसके ऊपर छोटे से प्लांटलेट्स निकल आते हैं। तो यो नए पत्ते से नए पौधे जो है बन जाते हैं। तो ये कैलेंचो है, वर्जीनिया नहीं है। और खास प्लांट जो है वो हमारा एलो है, एलोवेरा जिसको हम कहते हैं, क्वार कंदल, घी कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है ये आयुर्वेद का। और इसकी फ्लावरिंग का समय भी यही होता है, ऑटम सीजन। तो देखिए इसके फ्लावर्स भी हैं। और ये जो है एलो, जो क्वार कंदल जिसको हम कहते हैं, और इसके ये फ्लावर्स हैं, कितने हसीन हैं, खूबसूरत हैं। तो ट्री टॉक की 13 साल के इस लंबे सफ़र में ना जाने हमने कितनी बार इन पेड़ों की बात की है। और ये गंध प्रसारणी है, पिडीरिया फिटिडा। ये एक बदबूदार प्लांट है। अगर हम पत्ते को लेके मस लें तो एक बड़ी गंदी सी स्मेल आएगी। तो कोशिश करते हैं इसको देखने की। तो ये हमने लिया, इसको ऐसे ऐसे मस लो और खुशबू ऐसे आती है जैसे मूली की खुशबू। तो इसको गंध प्रसारणी कहा जाता है, पिडीरिया फिटिडा। तो ये यूनिक प्लांट है। और ये हमारी कनेर है, लाल कनेर, नीरियम इंडिकम। और ये लेमन ग्रास है, सिम्बोपोगान। और ये जंगल जलेबी है। अभी तो कोई जलेबी नहीं लगी हुई है, लेकिन जलेबियाँ लगती हैं। इसमें फाली होता है, पहाड़ होती है, इसको मनीला टैमारिंड कहते हैं। और ये है हमारा माइलेटिया ओवेलिफोलिया, मोलमी, रोजवुड।
और इसके ऊपर भी बटरफ्लाइज हैं, हालांकि इस बार फ्लावर तो है नहीं, लेकिन चॉकलेट पेंजी ऊपर जाके पर्च किया हुआ उसने, चॉकलेट पेंजी ऑन माइलेटिया पैगुएंसिस। बड़े खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं इसमें, पिंक ये है उसके फोलिएज, लेकिन जो बटरफ्लाई है वो ऊपर है, वो ऊपर उड़ रही है। और देखिए दूसरी बटरफ्लाई भी आ गई है, ये देखें, ये तितली जो है, ये दूसरी तितली है जो शायद ये लेपर्ड फैलंथा जैसी दिख रही है, दूर है, बड़ी क्लियर फोटो नहीं है, पर मतलब यहाँ पे भी हरियाली है, पेड़ है, वहाँ पे हमें ज़रूर तितलियाँ मिल जाती हैं। और उसी में कड़ी में एक कराल मूंड है, कश्मीर में इसकी सब्जी खाई जाती है,